بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم CSS 2023 کے پاکستان افیئرس کا انالیسس کرنے جا رہے ہیں. ہم سٹارٹ کریں گے پیپر کے کویسچن نمبر 1 سے اور سر ایمان سے انالیسس لیں گے. کویسچن نمبر 1 میں سر پوچھا گیا تھا کہ رول آف جناح ایز اے لیڈر آف انڈین مسلم ڈیورنگ دی کرائسس ریڈن پیریڈ 1937 ٹل 1947. آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ قائد اعظم کی لیڈرشپ کے بہت سارے پہلو ہیں. جب یہ 1937 کے الیکشنز ہوتے ہیں، 1935 کے کانسٹیٹیوشن کے 2 سال کے بعد 1937 میں الیکشنز ہوتی ہیں، تو اس وقت تک قائد اعظم ایک ریئلسٹ پولیٹیشین کے طور پر ایمرج ہو چکے تھے. یعنی وہ ان کی جو آئیڈیلزم کی جو ایج تھی وہ ختم ہو گئی جب وہ ہندو مسلم یونٹی چاہتے تھے. لیکن ابھی 1937 میں پہلے جنرل الیکشن سے قائد اعظم کے بھی اور مسلم لیگ کے اور برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی. خاص طور پہ مسلم میجورٹی ایریاز میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کو اتنی بھاری شکست کانگریس کے ہاتھوں، یہ ایک طرح سے پوری کی پوری مسلم لیگ کی لیجیٹمیسی کے اوپر کوشچن ریز ہوتا تھا کہ کیا واقعی مسلم لیگ was a true representative of the Muslims. کیونکہ کانگریس جتنی بڑی سیٹیں لے چکی تھی ان چاروں صوبوں سے جہاں پہ پاکستان ہے، اور وہ بہت پراؤڈلی یہ کہہ رہی تھی کہ there are only 2 parties in India, one is Congress and another one is British, and if there is any third party it has to line up. تو ایک ڈیفیٹڈ پارٹی تھی قائد اعظم کی مسلم لیگ، اور اس مسلم لیگ کو اٹھا کے تو اتنی بڑی موومنٹ بنانا، یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ان کی ہے. کیونکہ لیڈرشپ کے مختلف رولز ہیں. ایک رول یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے تو اپنے ٹارگٹس کو آپ چینج کر لیں. تو ایک ٹارگٹ جو قائد اعظم نے اچیو کیا تھا تو 14 پوائنٹس کا تھا 1929 میں. 1935 میں بہت ساری ان کی ڈیمانڈس پوری بھی ہوئیں اور کہا جانے لگا کہ مسلم لیگ کی جیت ہے. لیکن 1937 میں جس طرح سے شکست ہوئی تھی مسلم میجورٹی ایریاز میں قائد اعظم کو، صرف مائنورٹی ایریاز میں مسلمانوں نے ووٹ دیے تھے، جیسے سینٹرل انڈیا ہے، بہار ہے، اور ایسے ایریاز جہاں پہ مسلمس وہ لیونگ ان مائنورٹی. تو ایسے لگ رہا تھا کہ جو مسلمان مائنورٹی میں رہ رہے ہیں ان کو ہی صرف ہندو ڈومینیشن کا فیئر تھا، ہندو میجورٹی ایریاز میں تو فیئر کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کس طریقے سے اس ہاری ہوئی پارٹی کا موریل دوبارہ سے اپلفٹ کیا جا سکے. اس میں کچھ حصہ کانگریس کے ذمہ جاتا ہے. کانگریس نے جس طریقے سے بروٹل رول کیا اور مسلمانوں کے کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. لیکن قائد اعظم کی لیڈرشپ کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ اس ہار میں ایک چیز تو پتہ چل گیا کہ مسلمان گاندھی پر اور کانگریس پر زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. گاندھی کی 1930 کی جو موومنٹ تھی، اس کو سالٹ مارچ بولا جاتا ہے، 34 ڈیز کا، اور نان کوآپریشن موومنٹ کی ایک لیگ تھی. اس میں گاندھی یوز سیم اٹائر as the Indian people did. ایک دھوتی پہنتے تھے. He tried to show that he was a true representative of the poor people of India. اور ان کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کے لیڈر ہیں، لوگ ان کے ساتھ جا کے مل سکتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں یہ تھا کہ سوٹڈ بوٹڈ، کریز لیس سوٹ ہوتا تھا، اور ویسٹرنائز، سگار ہاتھ میں، کلین شیون، اور انگریزی بولنے والے بابو ٹائپ. تو ان کو سمجھا جاتا تھا ایرسٹوکریٹ. اور جیسے آپ کو پتا ہے 1937 کے فوراً ایک سال کے بعد 1938 میں لکھنؤ پہ پھر کانفرنس ہوئی تھی، جس میں وائٹ پیپر بھی پیش کیا گیا تھا کانگریس کی رول کے خلاف کے بارے میں کہ کیسی کیسی بروٹیلٹی انہوں نے کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی قائد اعظم نے اپنا اٹائر بھی چینج کر دیا، شیروانی پہنی، جناح کیپ پہنی. اب یہ صرف ایک اٹائر نہیں ہے، بلکہ ایز اے لیڈر آپ نے مکمل طور پر اپنا سمبولک نیریٹو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا. نہ ہی belong to the people he thought، اور ان کی یہ جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے بڑی ایک معنی خیز ہے. اس میں پھر ایک نیا لایا عمل طے کیا گیا کس طرح سے مسلم لیگ کو آرگنائز کرنا ہے. اس کی اسٹرکچرل آرگنائزیشن کتنی پور تھی گراس روٹس لیول کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں 1939 میں پھر ورلڈ وار 2 ہوئی اور برٹش کا جانا ٹھہرا. برٹش ڈپارچر بیکیم امیمنٹ ناؤ. تو 1939 میں پھر کانگریس نے ریزائن بھی کر دیا کیونکہ برٹش کے اس فیصلے پر کہ انڈیا بھی وار میں لڑے گا
ब्रिटिश के साथ मिलकर इंडियन आर्मी, तो उसके खिलाफ एक प्रिंसिपल स्टैंड था कांग्रेस का, उसके ऊपर उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन कायदे आजम ने उसके मुकाबले में 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, निजात का दिन मनाने का फैसला किया। थैंक्स गिविंग डे जिसको बोलते हैं, तो उसका जो फैसला किया तो पूरे हिंदुस्तान में क्रिटिसिज्म हो रहा था कि एक प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर कांग्रेस ने इस्तीफे दिए और कायदे आजम जो है उसको, लेकिन कायदे आजम के ज़हन में जो चीज़ें चल रही थी वो एक बड़े लीडर के ज़हन में चलती हैं। उनका मेन मकसद था मुसलमानों की इस बॉडी को जो तितर बितर थी 1937 के जनरल इलेक्शंस में, उनको दोबारा से मिलाना है, उनको यूनाइट रखना है। और 1940 में तो मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपना जो टारगेट है वो चेंज कर दिया। देखिए लीडर जो होता है वो टारगेट देता है अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि लीडर कभी भी अपने फॉलोअर्स को ऐसे नहीं छोड़ता कि जैसे रडरलेस शिप हो ओपन ओशन में जिधर मर्जी जा रही है, चकोले खा रही है। लीडर का काम होता है रडर्स प्रोवाइड करना और डायरेक्शन प्रोवाइड करना। पहले उन्होंने 14 पॉइंट के नाम पर एक टारगेट दिया था, टारगेट्स वर अचीव्ड, दैट वाज गोल सेट बाय हिम, एंड देन वंस दिस वर अचीव्ड 1937 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी माइनॉरिटीज के लिए उसको उड़ा के रख दिया, तो फिर कायदे आजम को फिर चेंज करना पड़ा, अपना टारगेट भी और बार भी ऊंची करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ना आप 14 पॉइंट, ना 6 पॉइंट, ना 3 पॉइंट, कोई नहीं, अब 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है पाकिस्तान। और 1940 में फिर लाहौर रेजोल्यूशन एक लैंडमार्क टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, उसमें जो कहा गया कि 2 नेशन, आप कायदे आज़म की तकरीर देख लें, सारी की सारी ऑलमोस्ट 2 नेशन के ऊपर है। कहा कि ये जो मसला है ये इंटर कम्युनल नहीं है, इंटरनेशनल है, यानी कि 2 नेशंस के दरमियान में है। और चूंकि हम नेशन होने की सारी पूरी करते हैं डेफिनेशन को, तो इस वजह से हम क्वालिफाई करते हैं एक स्टेट के लिए, क्योंकि उस वक्त लीग ऑफ नेशंस भी ऐसी बात कर रही थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात कर रही थी। 14 पॉइंट जो कि वुडरो विल्सन, अमेरिका के वुडरो विल्सन ने पेश किए थे लीग ऑफ नेशंस को बनाने के लिए, सही बात हो रही थी कि हर नेशन को हक है उस स्टेट का, तो स्टेट और नेशन को दोनों को मिलाया जा रहा था। हर नेशन को जो अपने आप को नेशन के तौर पर क्वालिफाई करती है उसको सॉवरेनिटी का भी हक है, उसको स्टेट का भी हक है। तो कायदे आज़म ने इस मौके को बड़े बेहतरीन तरीके से अपने लिए एक्सप्लॉइट किया। मतलब एक लीडर की निशानी होती है कि इंटरनेशनल धारे को भी देखता है, अपनी डोमेस्टिक और अपनी जो अंदरूनी हालात को वो भी देखता है, दोनों के दरमियान में एक सिंक पैदा करता है। कायदे आज़म ने बात की, मुस्लिम लीग ने बात की, 2 नेशन थ्योरी और पाकिस्तान का नारा तकरीबन तब्दील कर दिया, उस हारी हुई पार्टी को एक मैस मूवमेंट बना दिया। ये दिस इज द करिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म। ही डिड नॉट, आई मीन ऐसा नहीं है कि गोल आपने दिया और फिर उसके बाद आपने कौम को छोड़ दिया कि आप खुद ही जाओ इसको अचीव करो। कायदे आज़म led the people from front with his example, with his charismatic personality। तो उन्होंने खुद लोगों को लीड किया कि इस गोल को हमने किस तरह से अचीव करना। और आपने देखा कि 1940 से लेकर 1947 तक कितनी रेजिस्टेंस आई कांग्रेस की तरफ से भी और ब्रिटिश की तरफ से भी, कि किसी तरीके से हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे। वीक फेडरेशन जरूर रहे, लेकिन हिंदुस्तान को यूनाइटेड रखना चाहते थे, खासतौर पर 1945 के बाद। आप देखें 1940 के बाद 1940 में ऑगस्ट ऑफर कायदे में ठुकरा दी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसमें क्लियर कट पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया गया था, ठुकरा दिया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की कांग्रेस ने, उसको ठुकरा दिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कांग्रेस की एक तरह से साजिश है कि तेजी के साथ जल्दी से कहीं ब्रिटिश छोड़ जाए और ताकि मुसलमानों को टाइम ना मिले पाकिस्तान को निगोशिएट करने का। इसकी कायदे आज़म ने मुखालफत की, हो गया। फिर उसके बाद 1945-44 में इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जेल में चले गए और 1944 में जब रिलीज होके आए एक सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस हुई गांधी जिना टॉक्स में। गांधी बज़िद थे कायदे आज़म को ये मनवाने के लिए कि 2 नेशन नहीं है, गांधी बज़िद थे ये बताने के लिए कि गांधी रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों को भी, गांधी बज़िद थे कायदे आज़म को ये इंसिस्ट करने के लिए कि भाई पहले हम इंडिपेंडेंस ले लेते हैं फिर पाकिस्तान का फैसला कर लेंगे। यही कांग्रेस ने तारा सिंह को, जो कि सिख लीग के सरबराह थे उसको सिखों के, उनको भी यही लॉलीपॉप दिया था कि पहले हम हिंदुस्तान ले लेते हैं फिर खालिस्तान का फैसला कर लेंगे ना मिल मिला के।
और अभी तक वो खालिस्तान को रो रहे हैं। कायदे आजम की लीडरशिप है फार साइटेड, और वो कहते होते थे कि भाई मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज कांग्रेस के लोग लिबरल्स हैं, कल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स आ जाएंगे। कांग्रेस में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, और कायदे आजम खुद इंतहाई लिबरल थे, उनको कोई मुसलमान मानता भी नहीं था, और वो ऐसे हलकों में बैठे हुए थे कांग्रेस के कि जिसमें मुसलमानों को जाने की, अब्दुल कलाम आजाद वगैरह को जाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि इंतहाई लिबरल होने की वजह से उनके उन हलकों में बैठते थे। और फिर वो कहते थे कि मुझे पता है इनके माइंड का कि ये अभी जो बातें कर रहे हैं बाद में नहीं होगा। तो गांधी को कहा कि पहले हम अगर इंडिपेंडेंस ले भी लें तो कांग्रेस बाद में हमें दे देगी, पाकिस्तान मैं मान ही नहीं सकता। ये हकीकत भी है, हमने सिखों का हाल देख लिया। बहरहाल गांधी जिना टॉक्स के बाद से हम देखते हैं 1945 में वेवल प्लान आया। वेवल प्लान में तो सीधा सीधा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दिया वेवल ने या ब्रिटिश ने, उनमें कायदे आजम के खौफ से कि कायदे आजम नहीं मानेंगे यूनाइटेड इंडिया के ऊपर, इसलिए पहले उन्होंने कहा जी पहला काम तो है यूनाइटेड इंडिया, और दूसरे में हम मुसलमानों को नियरली इक्वल सीट्स दे देंगे हिंदुओं के। ये 1/3 सीट्स का मुतालबा कर रहे थे किसी जमाने में, जो 1/3 सीट्स दे दें, हम इनको इक्वल सीट्स दे देंगे। इक्वल सीट्स लेने, नियर मतलब थोड़ा सा फर्क के साथ इक्वल सीट्स लेने हिंदुओं के मुकाबले में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी वो कैबिनेट ही होती है, गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं चलानी होती, तो आप ले लें, आप छोड़ दें पाकिस्तान को। कायदे आज़म नहीं माने, हमें पता है कि ये जो इक्वल सीट्स हमें दे रही हैं ये हमें माइनॉरिटी में ही तब्दील कर देंगी, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने मुसलमान जो मेंबर्स हैं उनको भी अपॉइंट करेगी अपनी मुस्लिम सीट्स के ऊपर, फिर माइनॉरिटीज भी कांग्रेस का साथ देगी। तो यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेशन जो हुई इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो कांग्रेस की मर्जी का बनेगा, नहीं माने। 1945-46 में जो इलेक्शंस होते हैं वो कमाल के इलेक्शंस है, यानी एक हारी हुई पार्टी 1937 की बुरे तरीके से मुसलमानों, इवन अपने आप को क्लेम करती है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों को, मुसलमान मेजॉरिटी एरियाज में उनको हरा दिया। वो पार्टी कम बैक करती है 1945-46 में, और एक मैस मूवमेंट के तौर पर। आप देखें कि उस वक्त नारे भी कैसे थे 1937 में, नारे कैसे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, माइनॉरिटी वेटेज, 3/4 कम्युनिटी वोट फॉर्मूला वगैरह वगैरह। अब ये बातें तो हमें भी समझ नहीं लगती थी, सीएसएस से पहले तो कम से कम हमें समझ नहीं लगती थी कि क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नारे थे। तो आम एक मुसलमान को कैसे पता चलेगा? अब देखिए स्ट्रेटेजी कैसे चेंज की, नारे सिंपल बनाए, थोड़ा सा रिलीजन का भी तड़का दिया। अब देखो कार्ल मार्क्स कहता था, कार्ल मार्क्स क्या कहता था कि रिलीजन इज लाइक एन ओपियम, आप ये ड्रग है, आप दे दो लोगों को और सुला दो। लेकिन कायदे आजम ने उसको उलट किया, पैराडॉक्सिकल यूज ऑफ रिलीजन। कायदे आजम कब से उनको उठा रहे थे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स तुम्हारे खतरे में है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स खतरे में है, पॉलिटिकल, और जब तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं होंगे आप इक्वल नहीं आएंगे हिंदुओं के, और हिंदुओं के साथ बराबरी हो ही नहीं सकती जब तक आप उनके इक्वल नहीं आएंगे। कमी कमीन और चौधरी का मुकाबला कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। फिर कायदे आजम ने आखिरकार में आके कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अभी घूमते उठोगे ना। अब सोई हुई कौम उठ गई, सुत्ती कौम नु जगा छड़िया रिलीजन के तड़के के साथ। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बिल्कुल उलट हुआ, मतलब कि सोई कौम को, जागी कौम को सुलाने के लिए आप रिलीजन का तड़का लगाते हैं। आपने सोई कौम को, कायदे आज़म की लीडरशिप का कमाल देखें, सोई कौम को जगाने के लिए, टू अवेकन द स्लीपिंग नेशन into that awareness that their political and economic rights were in danger। अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट, कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि कायदे आज़म एक्चुअली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहते थे। तो ठीक है, तो अपनी नेशन के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही तो सोशल जस्टिस है। अगर सोशल जस्टिस नहीं आपको एक सोसाइटी में मिल रही है तो आप कमी कमीन बन के फिर रह जाओ। वो नहीं चाहते थे कि आप कमी कमीन बन के, वो कोई कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा कायदे आज़म तो खुद उनको पता था कि यूनाइटेड हिंदुस्तान में कभी लीडर नहीं बन सकते हैं या उनको कभी ओहदा नहीं मिल सकता। ओहदा तो वैसे मिल सकता था, जैसे वेवल कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर कहा था कि इक्वल सीट्स